We discussed in previous lecture Wronskian and its properties, and you can use Wronskian to check linearly independent solutions. So now we take few examples from higher order equations. Theory of second order and higher order equation is similar. So I will provide here some examples and how to write Wronskian for higher order equations. Higher order equations. So you can write a higher order equation in this form. Uh, let us let us take a nth order ordinary differential equation. Then you can write it as nth derivative, then some coefficient p1, and so on. Or in short notation, you can say that this is linear operator L, और यहाँ पे जो ऑपरेटर है उसको आप ये लिख सकते हो so this is operator L acting on Y, and if you write homogeneous equation, so in short you can write homogeneous equation, which is, so I'm writing in short notation, y n means just nth derivative, then some coefficient p1, and so on. So this is homogeneous equation. Also you can put initial conditions. तो सेकंड ऑर्डर में हमारे पास दो इनिशियल कंडीशन थी, फर्स्ट ऑर्डर में वन था, तो nth ऑर्डर में कितनी होंगी? यू विल हैव n इनिशियल कंडीशन. n initial conditions you can impose. So first condition y at x naught is y naught, then first derivative ये हमने लिखा था सेकंड ऑर्डर में, ठीक है. अगर थर्ड ऑर्डर होगा तो y डबल डेरिवेटिव आपको बताना पड़ेगा, एंड सो ऑन. सो सेकंड ऑर्डर है तो आप फर्स्ट ऑर्डर तक कंडीशन लिखोगे, nth ऑर्डर है तो आप n-1 तक कंडीशंस लिखोगे. सो यू नो n-1 डेरिवेटिव at point x naught, which is y naught n-1. So you can impose these conditions to get a unique solution. Same theorem is valid for higher order. सेकेंड ऑर्डर में क्या था कि कोफिशिएंट कंटिन्यूअस हो, यहाँ पे भी सेम कंडीशन है. सो इफ द फंक्शंस ऑल द कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट कौन से हैं? p1, p2, pn, and right hand side f, everything is continuous on an open interval. You can write open interval ab or any interval I. Then there exists unique solution
y equals to phi of t of nth order equation. Now let us say we are talking about this nth order equation first, satisfying the initial condition or you can say there exists a unique solution of initial value problem. So this satisfy initial condition given above. So initial conditions given in 2. Say this is 2 and initial condition. So your initial value problem will have a unique solution provided all the coefficient they are continuous functions. तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट ऑर्डर में भी कंटिन्यूटी कंडीशन था, ठीक है, लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा हूँ. नॉन लीनियर में फर्स्ट ऑर्डर में लिपस्टेड भी रिक्वायर्ड था यूनिकनेस में, कंटिन्यूटी प्लस लिपस्टेड. और जो अगर सिर्फ लीनियर इक्वेशंस हैं देन ओनली कंटिन्यूटी इज एनफ टू प्रूव एक्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ द सॉल्यूशंस. आल्सो यू कैन राइट, हमने रॉन्स्कियन लिखा था, इन द सेम मैनर यू कैन राइट रॉन्स्कियन, but here since you have nth order equation, so Wronskian will be Wronskian, that will be denoted by W y1 y2 Wronskian of n solutions. तो सेम वे में है, फर्स्ट डिटर्मिनेंट है, वहां पे हमने y1 y2 लिखा था, तो सारे सॉल्यूशन लिख दो फर्स्ट रो में. सेकंड रो में क्या था, उनके फर्स्ट डेरिवेटिव थे, तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव लिख दो. अब सेकंड ऑर्डर में आपने फर्स्ट डेरिवेटिव तक लिखा था, ठीक है, और nth ऑर्डर है तो आपने इसको कंटिन्यू करना है, फिर आप लिखोगे सेकंड डेरिवेटिव थर्ड रो में एंड सो ऑन, और फिर nth रो लिखोगे आप, उसमें n-1 डेरिवेटिव, n-1 डेरिवेटिव. Of all these functions, and same result hold here, so I am not restating it again. If the coefficient p1 p2 pn they all are continuous function on any open interval, and y1 y2 dot dot yn these are solution, then Wronskian is non-zero. ओके, तो जब हमने रॉन्स्कियन नॉन जीरो कहा था तो उसी को आपने कहा था लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, ठीक है, फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस. सो ए सेट ऑफ सॉल्यूशन y1 y2 yn whose Wronskian is non-zero is called fundamental set of solutions. And in previous lecture I discussed that the following statements are equivalent, चाहे आप फंडामेंटल सेट को सेट ऑफ सॉल्यूशन को, चाहे लीनियरली इंडिपेंडेंट को, जनरल सॉल्यूशन को, ऑल आर इक्विवेलेंट थिंग्स. ओके, सारी चीजें यहाँ भी एप्लीकेबल हैं. सो ऑल स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट. और लीनियरली इंडिपेंडेंस कैसे चेक करोगे आप, सेम वे में कंप्यूट, वी विल कंप्यूट Wronskian. If it is non-zero then we say that they are
the, the, the functions are linearly independent, or you can check linearly independence by using the definition. Write linear combination. ठीक है, अगर फंक्शंस का चेक करना हो f1 f2 का, तो आप क्या लिखते हो, लीनियर कॉम्बिनेशन लिखते हो c1 f1 plus c2 f2 and so on. If all the coefficients are zero, then you say that these functions are linearly independent. ठीक है, तो फर्स्टली हमने सेकंड ऑर्डर में सॉल्व किया था होमोजीनियस इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। पहला स्टेप तो यही था, होमोजीनियस इक्वेशंस with constant coefficient, and you what you substitute in that case, you started with solution e y equal to e power rt. Then there were three cases. If you get different roots, then you get solution different solution e power, मान लो आपको n रूट डिफरेंट मिल रहे हैं r1 r2 r3 etc, तो सॉल्यूशन क्या होंगे, e पावर r1t e पावर r2t एंड सो ऑन। ठीक है, तो फर्स्ट मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। सो फर्स्ट लेट अस से फाइंड द जनरल सॉल्यूशन of initial value problem. Sorry, first solve a differential equation, then you can write solution of IVP. Let us solve first this, and hence find the solution with initial conditions. तो कंडीशन क्या है, फोर्थ ऑर्डर है, कितनी कंडीशन होंगी, 4 होंगी। जीरो पे, जीरो स्टार्टिंग पॉइंट है, जीरो पे फर्स्ट डेरिवेटिव आपको दे रखा है, सेकंड डेरिवेटिव दे रखा है, और थर्ड डेरिवेटिव दैट यू आल्सो नो एट जीरो। ओके, so you started with y equal to e power rt, then राइट ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो वो क्या बनेगी, 4 बार डेरिवेटिव कर लो इसका। और जस्ट सॉल्व डायरेक्टली। so assuming y equal to e power rt, so you get auxiliary equation r4 plus r cube minus 7r square minus r plus 6 equals to 0. Although it is difficult to solve these fourth order polynomials, but start guessing the solution, start fitting 0 1 2 3 etc, और -1 -2 जिस पे ये वैनिश हो, अगर इंटीजर सॉल्यूशन है तो आपको मिल जाएगा। तो 4 सॉल्यूशन हैं इसके, एक तो 1 है, दूसरा -1 है, फिर 2 है, और -3 है। So general solution is all are distinct roots, so this is the general solution. Now put initial conditions
फर्स्ट कंडीशन ये तो हो गया जनरल सोल्यूशन ऑफ किसका हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का. Now you write solution of IVP, initial value problem. So y0 equals to 1. This will give you, मैंने यहाँ पे dy by dt एज्यूम किया है, ठीक है. आप नोटेशन पे कंसिस्टेंट ही रहना. आप वैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हिडन था तो आप इसको e पावर rx भी फिट कर सकते हो. देयर इज नो प्रॉब्लम. ओके, you can fit anything. So y0 equals to 1. तो फर्स्ट क्या बनेगा c1 प्लस c2 प्लस c3 प्लस c4 इक्वल्स टू 1. सेकंड कंडीशन डेरिवेटिव कर लो y डैश 0 इक्वल्स टू 0. c1 इसका e पावर माइनस t का -1, यहाँ से 2 आएगा. ओके, देन सेकंड डेरिवेटिव c1 प्लस c2 प्लस 4c3 प्लस 9c4 इक्वल्स टू -2. Then third derivative okay, so fit all four conditions and try to solve this for c1 c2 c3 c4. तो थोड़ा ट्रिक से कर लेना. जैसे आप फर्स्ट देखोगे तो फर्स्ट c1 प्लस c2, थर्ड में भी c1 प्लस c2 है, ठीक है. इनको जस्ट माइनस करोगे तो c3 और c4 में 2 क्रॉस 2 बन जाएगा. फर्स्ट और थर्ड को देखोगे. सिमिलरली 2 और फोर्थ को देखोगे तो माइनस करोगे तो c3 c4 में 2 क्रॉस 2 सिस्टम बनेगा. तो उसको वहां से c3 c4 निकाल लो. एंड सिमिलरली देन यू कैन फिट c3 c4, तो आपको c1 c2 मिल जाएंगे. सो ट्राई टू सॉल्व फॉर these values. So c1 11 by 8, c2 5 by 12, c3 is minus 2 by 3, and c4 is minus 1 by 8. So then you can write solution of initial value problem. Fit all coefficient here in general solution. So this is the unique solution. Okay. So in the same manner, you can solve like third order, fourth order. But यहाँ पे सबसे बड़ा problem ये रहेगा to find root of these equations. Let us say if you have a sixth order equation, then you will get an equation, a polynomial in sixth power r6. तो उनको solve करना, उनके रूट निकालना. वैसे आप एक सेकंड सेमेस्टर में you will study a course namely numerical analysis in which you will explore these situation and using numerical technique you can solve different kind of equations. So that is a different story. But you can start solving by fitting 1 2 3 4. तो जैसे 1 फिट कर लिया, एक सोल्यूशन मिल गया, या 2 निकाल लो, तो फिर आप डिवाइड कर देते हैं ना. जैसे r-1 से डिवाइड करो तो क्यूबिक बन गया आपके पास, ठीक है. r+1 से डिवाइड करोगे तो एक बार और करोगे तो क्वाड्रेटिक मिल जाएगा. क्वाड्रेटिक के रूट निकाल लो.
So try to guess, try to find one or two roots. और कई बार इक्वेशन सिंपल बन जाती है कि मान लो एक r कॉमन आ गया, so sometimes you get some simple factors to solve. And second case, you may have complex root of auxiliary equation, and in third case you may have repeated roots. Okay, so we had three cases, so all three cases are similar here. For example, solve y4 minus y equals to 0. So if you fit y equal to e power rt or e power rx, then you got r4 minus 1 equals to 0. So r square minus 1, r square plus 1 equals to 0. क्या मिला आपको? r 1 minus 1 iota minus iota. So solution is, अगर मैं डेरिवेटिव को ये लिख रहा हूँ dy by dx, तो सोल्यूशन होगा c1 e पावर x, c2 e पावर माइनस x कॉरस्पॉन्डिंग टू -1, और एक आयोटा है और एक उसका कॉन्जुगेट है, सॉरी दिस इज माइनस आयोटा, तो अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, अल्फा 0 है यहाँ पे, e की पावर अल्फा x था वो तो आएगा नहीं, फिर कांस्टेंट cos बीटा t, बीटा इज 1, so cos t plus c4 sin t. So this is the general solution. For example, solve this y4 plus 2 y double prime plus y equals to 0. So substitute y equal to e power rx. So this will give you r4 plus 2r square plus 1 equals to 0. तो यहाँ पे आप फैक्टर कर सकते हो इसके r plus 1 r square. क्या फैक्टर होंगे इसके? r square plus 1 होल स्क्वायर आ जाएगा, तो यानी कि रिपीटेड फैक्टर हैं आपके पास. तो क्या सॉल्यूशन होगा? c1 आप एक आयोटा माइनस आयोटा के कॉरस्पॉन्डिंग लिख लो, वो आ जाएगा c1 cos x प्लस c2. अच्छा यहाँ पे x लिखना, सॉरी मैं कई बार x लिख देता हूँ, कई बार t, या तो x लिखो या t लिखो, आपकी मर्जी. एक फैक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग ये आएगा. तो दूसरा सॉल्यूशन आपने कैसे लिखा था पहले? अगर रिपीटेड रूट हो तो आप x से मल्टीप्लाई कर देते हो दूसरा, तो सेम में यहाँ पे आपने करना है, x से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरा सॉल्यूशन लिख दो. सो c3 cos x प्लस c4 sin x. ठीक है, वहां पे हमने लिखा था ना, एक e पावर आर टी हो, एक e पावर आर एक्स होगा, तो दूसरा अगर रिपीटेड रूट हो तो x टाइम e पावर आर एक्स. तो यहाँ पे भी सेम लिखा है, हमने एक सॉल्यूशन लिख दिया प्लस माइनस आयोटा के कॉरस्पॉन्डिंग, दूसरे में हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया. सो इन दैट वे यू कैन राइट सॉल्यूशन ऑफ हायर ऑर्डर इक्वेशन दैट इज सिमिलर टू सेकंड ऑर्डर इक्वेशन. सो all linear equation have same theory. हाँ, सॉल्यूशन निकालने का वे थोड़ा सा वो तो इक्वेशन पे डिपेंड करेगा. यहाँ पे आपको फोर्थ ऑर्डर है तो आपको बाई क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ रहा है ना, बट वर्किंग प्रोसीजर इज ऑलमोस्ट सेम.
बाकी सारे रिजल्ट जो रॉन्स्कियन वाले थे, एवरीथिंग होल्ड फॉर हायर ऑर्डर इक्वेशन. नाउ आई मूव टू नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस. We take example of second order, and if possible we will also take example of higher order equations. So non homogeneous equation. तो इसमें जो बेसिक रिजल्ट है नॉन होमोजेनियस का, बेसिक थ्योरम जो है, so this says that if capital Y1 and capital Y2 are two solutions of नॉन होमोजीनियस, और नॉन होमोजीनियस को इन होमोजीनियस भी बोलते हैं, सो दैट इज द सेम थिंग. नॉन होमोजीनियस का होता है इन होमोजीनियस. ऑफ इन होमोजीनियस इक्वेशन y डबल प्राइम प्लस पी वाई प्राइम प्लस q इक्वल्स टू f लिखा था हमने, क्या लिखा था, g लिखा था, जो भी लिखना हुआ. So this is non-homogeneous, and y1 and y2 are two solution of this non-homogeneous equation. Then their difference y1 minus y2 is a solution of corresponding homogeneous equation. So this was the important result. आपने पहले यूज भी किया है, मे बी इस सेंस में नहीं लिखा आपने, बट then the difference is a solution of corresponding homogeneous equation. तो homogeneous क्या बनेगी, ये राइट हैंड साइड को जीरो कर दो. If in addition y1 and y2 are fundamental set of solutions of इनको नंबर लगा रहे थे, दिस इज 1, दिस इज 2, fundamental set of solutions of 2, then अब y1 माइनस y2 सोल्यूशन किसका है, होमोजीनियस का, तो आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हो c1 y1 प्लस c2 y2. दो चीजों की डिस्कस कर रहे हैं हम. एक स्मॉल y1 y2 किसके सोल्यूशन है, होमोजीनियस के, तो आप इस फॉर्म में लिखते हो. जो डिफरेंस था वो किसका सोल्यूशन है, होमोजीनियस का. और y1 y2 कैपिटल वाले किसके सोल्यूशन है, नॉन होमोजीनियस के. कैन यू प्रूव इट, जस्ट 2 लाइन का प्रूफ है. So go with the definition, since y1 and y2 capitals, they are solutions of first, दोनों सेटिस्फाई करेंगे. y2 also satisfy. ओके, अब डिफरेंस को शो करना है, दोनों को माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट. सेकंड माइनस फर्स्ट कर दो, या फर्स्ट माइनस सेकंड कर दो.
फर्स्ट माइनस सेकंड, y1 माइनस y2, इसको आप ये लिख सकते हो डबल डेरिवेटिव px कॉमन आ जाएगा, y1 माइनस y2, डेरिवेटिव आप अलग भी लिख सकते हो। इसका मीनिंग क्या है, dy वन बाई डी एक्स माइनस dy टू बाई डी एक्स, फिर आ जाएगा qx y1 माइनस y2 कैपिटल, और राइट हैंड साइड में क्या आएगा, gx माइनस gx इक्वल्स टू 0। तो यहां से कह सकते हो, अब होमोजीनियस देखिए, y की जगह क्या आ रहा है, y1 माइनस y2 डबल डेरिवेटिव प्लस px y1 माइनस y डेरिवेटिव qx y1 माइनस y2, तो y की जगह क्या आ रहा है, y1 माइनस y2 इक्वल 0 है। तो इसका मीनिंग क्या है, y1 माइनस y2 इज सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। ओके, कह सकते हैं ना ऐसे। So y1 minus y2 satisfy the homogeneous equation. So therefore y1 minus y2 is a solution of homogeneous equation 2. And since you can write solution of homogeneous equation as a linear combination of small y1 and y2, where y1 and y2 are fundamental solutions of 2। ये हमने पहले लिखा था, जनरल सॉल्यूशन को इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो मतलब ये कहने का मीनिंग है कि सारे जो भी सॉल्यूशन होंगे होमोजेनियस के इस कॉम्बिनेशन से मिलेंगे। तो y1 माइनस y2 सॉल्यूशन है, तो वो भी इस कॉम्बिनेशन का पार्ट है। यही है ना, फंडामेंटल सॉल्यूशन यही है कि बस यही दो फंक्शन है, सारे सॉल्यूशन आपको इनसे मिलने हैं और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सो एवरीथिंग, एवरी सॉल्यूशन विल बी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ y1 एंड y2, and this set y1 y2 small y1 y2 is fundamental set of solution। और इसी रिजल्ट को आप यूज करते थे, एक क्रोलरी है, आप करते थे कि एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन पहले होमोजेनियस सॉल्व कर लो, नॉन होमोजेनियस का सॉल्यूशन निकालना है तो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल लो, करते थे ना आप। फिर करते थे ना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये किसका सॉल्यूशन है, होमोजेनियस का। एक पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लो, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल लो नॉन होमोजेनियस का, दोनों को ऐड कर दो तो आपको मिलेगा जनरल सॉल्यूशन नॉन होमोजेनियस का। वो रिजल्ट इसी डेफिनेशन से फॉलो हो रहा है। कैसे फॉलो हो रहा है, हमने ऊपर लिखा है कि अब कैपिटल y1 y2 किसके सॉल्यूशन है, किसके सॉल्यूशन है, नॉन होमोजेनियस के। उनको किस में लिख सकते हो आप, होमोजेनियस के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में। ठीक है, तो जो जनरल सॉल्यूशन होगा नॉन होमोजेनियस का, जनरल सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस, रफली मैं कहूँ कि इसको इसको इधर एक को इधर रख लो, एक को इधर ले जाओ। तो लेफ्ट में y1 किसका सॉल्यूशन है, नॉन होमोजेनियस का। y2 भी किसका सॉल्यूशन है, नॉन होमोजेनियस का। अब सेकंड ऑर्डर के सॉल्यूशन में दो कांस्टेंट होंगे, दो कांस्टेंट तो आपके यहां से आ ही गए। तो आप जनरल, अब इसको मैं कह देता हूँ जनरल सॉल्यूशन, लेफ्ट वाले को इसको कह देता हूँ पर्टिकुलर। तो आप एक सॉल्यूशन निकाल लो नॉन होमोजेनियस का, होमोजेनियस वाले में ऐड कर दो तो आपको जनरल सॉल्यूशन मिलेगा नॉन होमोजेनियस का। ओके, सो द जनरल सॉल्यूशन of non-homogeneous equation first is,
अब मैं y1 की जगह y लिख रहा हूँ, सो y क्या होगा, c1y1 प्लस c2y2 प्लस ए पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस। So in order to solve non-homogeneous, first find fundamental solutions small y1 and y2 of homogeneous, and then find one solution of non-homogeneous जिसको आप particular solution बोलते थे. Try to find that one solution, add all these, you will get solution of non-homogeneous equations. So there are two, three ways that are two, three methods. They are very important. One is called variation of parameters, and first one is little bit tricky one, and this is called the method of undetermined coefficient. So this method is very simple to use, but you can use this method when you have right hand side, that is right hand side has a special form. जो आपका राइट हैंड साइड है जिसको मैंने लिखा था g लिखा था, अगर gx का एक फॉर्म हो, स्पेशल फॉर्म हो, then you can apply method of undetermined coefficient. So there are some possibility that I am discussing with examples. फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि अगर आपका राइट हैंड साइड एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, ठीक है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट इक्वेशन हो, तो क्वेश्चन है फाइंड ए पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब मैं पर्टिकुलर की इसी की बात कर रहा हूँ बस, बाकी तो आप लिख लोगे, आप यू नो हाउ टू सॉल्व दिस वन। ओके, सो फाइंड ए पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ कांस्टेंट कोएफिशिएंट नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। अब ये कहता है कि अगर राइट हैंड साइड में सिर्फ एक्सपोनेंशियल हो, तो आपको पता है कि लेफ्ट में डेरिवेटिव है y है, और एक्सपोनेंशियल एक ऐसा फंक्शन है जिसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सपोनेंशियल ही मिलना है आपको। एक्सपोनेंशियल किसी और फंक्शन से नहीं मिलेगा डेरिवेटिव करने से, किससे मिलेगा, एक्सपोनेंशियल। तो कहने का मीनिंग है कि वी कैन स्टार्ट थिंकिंग सॉल्यूशन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट। अगर राइट हैंड साइड, लेफ्ट और राइट बराबर भी होंगे ना, इक्वल होंगे, राइट में एक्सपोनेंशियल है, इसका मीनिंग है सेम एक्सपोनेंशियल, और ऑल एक्सपोनेंशियल की जो पावर्स हैं, ई पावर ए एक्स, दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर मैं ई पावर एक्स लिखूं, ई पावर 2x लिखूं, ई पावर -3x से, अब ई पावर एक्स को आप इससे नहीं बना सकते ना, कांस्टेंट टाइम नहीं बना सकते, 2 से, इसी से नहीं बना सकते। सो ऑल पावर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो कहने का मीनिंग है कि अगर एक्सपोनेंशियल है लेफ्ट में, तो राइट में भी एक्सपोनेंशियल ही होगा। सो वी स्टार्ट, और साथ में कांस्टेंट हो सकता है। So we start taking solution. So clean. So we start taking solution in exponential format. फिट करके देखते हैं, अगर मिल गया तो ठीक, अच्छी बात है। कांस्टेंट टाइम e पावर -x. So we start fitting this. अब फिट करो, लेफ्ट में y डबल डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा, 2 बार डेरिवेटिव करोगे ये a बन जाएगा। देयरफॉर इक्वेशन में फिट कर दो, +3a - 4a, डबल डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव एंड y, तो e पावर -x कॉमन आ जाएगा, और राइट में भी e पावर -x था। अब इक्वेशन क्या बन रही है, 4a - 4a, तो 0 बन गया, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये बन गया, सो विच इज नॉट पॉसिबल। तो अगर ऐसा केस हो, देन वी स्टार्ट टेकिंग, कि हो सकता है कि इसमें सोल्यूशन इस फॉर्मेट में हो।
बाकी मैं जो जनरल रिजल्ट है आई विल स्टेट आफ्टर दैट एग्जांपल कि x टाइम्स लेके देखो आप, x टाइम एक्सपोनेंशियल x। अब फिट करो, y डबल डेरिवेटिव कंप्यूट करो, y डबल डेरिवेटिव ये आ जाएगा -2a -3a, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव यही आएगा डबल डेरिवेटिव, 2 तो कहां से आएगा, y डबल डेरिवेटिव आप निकाल लीजिए, y फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लो, x का डेरिवेटिव 1 और -ax ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया एंड डबल डेरिवेटिव विल बी, देन यहाँ पे करोगे तो ax, फिर करोगे तो माइनस, हाँ तो इससे 2 आ जाएगा, ठीक है -2। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में फिट कर दो, देयरफॉर y डबल डैश लेफ्ट हैंड साइड जो है फिट करोगे तो ये बनेगा -5a e पावर -x के साथ ये आएगा और बाकी टर्म शायद 0 बन जाएगी, इक्वल्स टू 2e पावर -x। तो दोनों साइड कंपेयर करोगे तो a आपको मिल गया -5/2। तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, -2/5 x e पावर -x। Okay, so start taking exponential or x time exponential, or sometime you need to take x square by x square exponential. So outcome of this example suggests a modification, और ये modification actually आया कहां से है कि देखो, अब इस पे बैक जाओ तो उसका आंसर भी इसी के अंदर है। आपने सॉल्यूशन क्या अज्यूम किया, e पावर -x। अगर वो e पावर -x यहाँ पे भी ऑलरेडी है इनका, यानी कि होमोजीनियस का पर्टिकुलर सॉल्यूशन अगर है, होमोजीनियस का अगर सॉल्यूशन है तो फिर ये और ये तो सेम बन गए। बट हमने हमने क्या निकालना है, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन निकालना है हमें, यानी कि जो स्मॉल y1 जो आप कैपिटल Y2 पर्टिकुलर सॉल्यूशन अज्यूम कर रहे हो वो स्मॉल y1 और y2 नहीं होना चाहिए। अगर ये है तो फिर आपने x से मल्टीप्लाई कर देना। ओके, सो वी अज्यूम दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन डुप्लीकेट, if it duplicate यानी कि सेम है, if duplicate a solution of corresponding homogeneous equation then you modify by multiplying with x। अब होमोजेनियस का सॉल्यूशन आप निकाल के देख लो क्या आएगा, r² -3r -4, एक r -1 होगा। ठीक है, तो जो मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट है ये स्पेशल केसेस में लगेगा, एक्सपोनेंशियल हो, और दूसरा केस हम कल पढ़ेंगे साइन और कोसाइन हो। और अगर राइट हैंड साइड में साइन कॉस हो तो वो साइन कॉस किससे आते हैं, साइन का डेरिवेटिव एक बार करोगे कॉस बनेगा, दो बार करोगे साइन बनेगा। तो अगर साइन कॉस राइट हैंड साइड में है तो लेफ्ट में भी साइन और कॉस होने चाहिए। अब साइन अगर राइट हैंड साइड में साइन फंक्शन है तो लेफ्ट में साइन भी हो सकता है कॉस भी, तो हमें दोनों लेके चलेंगे। ठीक है, साइन ax प्लस कॉस bx। ओके, और थर्ड केस होगा कि अगर सिर्फ पॉलिनोमियल हो। अब पॉलिनोमियल भी ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव ये होता है कि अब पॉलिनोमियल में डेरिवेटिव करोगे तो मिलेगा तो आपको पॉलिनोमियल ही, बट डिग्री कम होती जाएगी डेरिवेटिव करते जाओगे तो। मान लो x³ है, एक बार डेरिवेटिव किया तो क्या आया 3x², सेकंड डिग्री बन गया, दो बार किया तो 6x आया 1 डिग्री, बट बनेगा तो पॉलिनोमियल ही।
तो आप राइट हैंड साइड अगर पॉलिनोमियल है, सो यू कैन थिंक सोल्यूशन इन पॉलिनोमियल फॉर्म। हाँ, बाकी और कोई फंक्शन हो, जैसे ये फंक्शन हो गया मेरे पास, अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1/2 ये आ गया, तो आप डिफरेंट डिफरेंट बनते जाएंगे, सो वी डोंट नो व्हाट विल अकर। और कोई फंक्शन आ गया, tan आ गया, cot आ गया। हाँ, उन केसेस में आप लगा सकते हो अगला मेथड, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस। Okay, so I'll stop now. Any doubt? Okay, then see you in next class.